ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ। 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 3:40 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ 6 ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 3:40 ਤੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਰਸ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। फिलहाल गुलवंत ठाकुर सारे सहयोगी शिमला तो जुड़े ने। तो गुलवंत, आज की सुबह कह सकते हैं कि हिमाचल के लिए और कांग्रेस के लिए बेहद एक जो सोग के साथ आई हुई सुबह है, क्योंकि वीरभद्र सिंह का देहांत हो गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये हिमाचल के लिए बहुत ही दुखद घटना है। एक कद्दावर जो नेता हैं उनका लंबी बीमारी के बाद आईजीएमसी में सुबह ही 3:40 पर देहांत, अंतिम सांस ली है उन्होंने। इसकी पुष्टि आईजीएमसी के MS डॉक्टर जनक राज ने की है। फिलहाल अभी उनका पार्थिव शरीर आईजीएमसी कॉलेज के बाहर रखा गया है। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके निजी आवास पर ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और बता दें कि वीरभद्र सिंह 30 अप्रैल से आईजीएमसी में भर्ती थे और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर पिछले 2 दिनों में रखा गया था। और आज सुबह ही 3:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी बिल्कुल गुलवंत, तो क्योंकि काफी समय से बीमार थे, हालांकि एक बार कोरोना को उन्होंने मात दे दी थी, जो स्वस्थ होकर वो घर वापस आ गए थे, लेकिन उनकी देखरेख कर रही नर्स ही पॉजिटिव आ जाती है। यानी कि सीधे तौर पर कोरोना का खतरा उन पर जो पिछले समय से था वो लगातार मंडरा रहा था। इसके कारण कह रहे थे कि तबीयत उनकी जो है वो काफी नासाज रहती थी, कमजोर भी वो काफी हो चुके हैं। जो हमने उनकी आखिरी तस्वीरें देखी हैं उनमें वो नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल दे 6 वार मुख मंत्री रहे ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3:40 ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। रणबीर साढ़े सहयोगी शिमला तो जुड़े हुए ने। तो रणबीर, लगातार हालांकि डॉक्टरों की टीम उनका ध्यान रख रही थी, कोशिश की जा रही थी उनको स्वस्थ करने की, लेकिन आखिरकार आज की सुबह हिमाचल के लिए, कांग्रेस के लिए एक दुखद सुबह बन के आई है। जी देखिए, बहुत दुखद खबर है पूरे हिमाचल के लिए। हालांकि लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि पिछले कल शाम को भी जिस तरह का जो है अपडेट आया था आईजीएमसी प्रशासन से, ये जानकारी दी गई थी कि वो अभी भी वेंटिलेटर पर हैं।
तो सांस में तकलीफ उनकी बढ़ गई थी। सोमवार की सुबह उन्हें ये बताया गया कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें जो है मिलने पहुंचे थे, उस वक्त से जो है लोग जो है काफी डरे हुए थे। उनकी जो हालत थी काफी चिंताजनक बनी हुई थी और आखिर ये घड़ी यहाँ पर आ गई जब उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पर ली है। तो बहुत बड़ी क्षति है ये हिमाचल के लिए। इतने बड़े कद का नेता शायद ही हिमाचल में कोई अब देखने को मिलेगा और जो उनका कद था, जो व्यक्तित्व था, उसके आगे जो है कोई ठहर नहीं पाता है। क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। अभी की जो अपडेट ये है कि अभी उनके शव को जो है मेडिकल कॉलेज लाया गया है IGMC और यहाँ पर अभी जो है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। ये जानकारी मिली है, उनके परिवार के कुछ करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि आज जो है अंतिम दर्शनों के लिए वो रखा जाएगा। जगह जगह पर जो है उनके शव को जो है अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि उनका अंतिम संस्कार जो है उनके जो पैतृक स्थान है रामपुर, वहां पर जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। तो कुल मिलाकर अभी की जो ये स्थिति है ये बेहद ही हिमाचल के लिहाज से न केवल बल्कि यूं कहें कि पूरे देश के लिए एक बड़ा नेता जो है यहाँ पर उसने अंतिम विदाई ली है। जी अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो जाहिर सी बात है जैसे आपने जिक्र किया कि इतने बड़े कद वाला शायद ही अब दोबारा से हिमाचल को या कांग्रेस को कोई नेता मिल सकता है। ये कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह का ही एक कह सकते हैं कि उनकी छवि ऐसी है कि कांग्रेस में तो उनका बड़ा नाम है ही, लेकिन बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो भी आज उनका इतना ही सम्मान करते हैं। इसीलिए तो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल के दौरे पर आते हैं तो वो उनका हाल जानना नहीं भूलते। और यहाँ अगर बात की जाए तो जयराम ठाकुर समय समय पर हाल जानते हैं उनका। तो रणबीर, आप बने रहे हमारे साथ। फिर से आपका रुख करते हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ आशा कुमारी जुड़ गई हैं। तो आशा कुमारी जी, आज एक साथी कह सकते हैं जो आपके बहुत सीनियर रहे हैं, 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, आज साथ छोड़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए, आप सब लोगों के लिए ये बेहद दुखद घटना। देखिए, बात ये है कि वो हम उनको अपना साथी कहे, ये हमारा वो नहीं है जी। मैं तो उनको अपने पिता के समान देखती थी। बचपन से, मैं जिस दिन से पैदा हुई वो मेरे मौसा थे और मैंने कभी उनको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा। हमेशा एक पिता की तरह उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। ये तो किस्मत की बात है कि मैं भी विधायक बन गई और उनके साथ वर्षों तक विधायक रह के, मंत्री रह के काम करने का मौका मिला। पर मेरे वो रिश्ता मुझे आज नहीं याद आ रहा है। आज तो सिर्फ जो एक मेरे पिता का रिश्ता था उसको याद करके बहुत दुख, मेरे पास शब्द ही नहीं है जी कि मैं बोल सकूं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। राजनीतिक जगत को नुकसान जो हुआ है वो अपनी जगह है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा राजनीतिक हमारे बीच से चला गया, वो अपनी जगह है। लेकिन एक बेटी अपने बाप को जब खोती है वो निशब्द करने वाला होता है। आशा कुमारी जी, जाहिर सी बात है कि बेहद भावुक पल हैं आपके लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि हमने कभी उनको एक सियासतदान के रूप में नहीं देखा है क्योंकि उम्र का बहुत फर्क है और एक तजुर्बा उनका बहुत ज्यादा है। तो जैसे आपने कहा कि आज एक बेटी ने बाप को खोया है तो वो समझ सकते हैं हम कि आज कैसा आप पर बीत रहा होगा। क्योंकि उनकी छवि की अगर बात की जाए आशा कुमारी जी, तो सिर्फ आप ही नहीं, बहुत से हिमाचल के ऐसे लोग भी हैं कि उनको सियासतदान समझते ही नहीं थे, क्योंकि इसीलिए थे कि वो 6 बार मुख्यमंत्री बने और सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। जी देखिए, वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने हिमाचल के लोगों को जनता नहीं समझा, अपना परिवार समझा। कितने लोगों की, अनेक लोगों की दुआएं उनके साथ रही जी। आज शब्द नहीं है हिमाचल के लोगों के पास। इस
कोई कांग्रेस या बीजेपी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है जी। आज हर हिमाचली रो रहा है जी। हर तो आशा कुमारी जी, आपकी नुकसान है। आखिरी वक्त उनसे बात कब हुई थी? जब आपने हालचाल जाना हो तो क्या बात हुई, कैसी तबीयत बताई जा रही थी उनकी? नहीं देखिए, उनके मैंने आपको बताया वो मेरे सक्के मौसा थे जी। मेरी मदर की छोटी बहन उनकी पहली पत्नी थी और जो प्रतिभा सिंह जी हैं वो भी मेरी कजन है जी। तो उनसे और परिवार से तो मेरी रोज ही बात होती है जी। उनसे तो बात हुए बहुत समय इसलिए हो गया क्योंकि जब से वो हॉस्पिटलाइज थे हाँ। उनसे मिलना संभव नहीं था तो परिवार से ही बात होती रही जी। उनकी पत्नी से और बच्चों से जो कि मेरे भाई बहन है। जी। जी। तो रोज ही बात होती है। विक्रमादित्य से भी कल शाम को भी बात हुई और जैसे ही उनका निधन हुआ तो निश्चित तौर पे परिवार में आपस में बातचीत हुई। जी। सुबह 4 बजे भी विक्रमादित्य से मेरी बात हुई। अभिलाषा जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है मेरी कजन है जी। जी। उनसे भी सुबह 4 बजे बात हुई। जी। तो बात की नहीं है। सब इस बात को जान रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है लेकिन वो एकदम से अचानक ऐसे चले जाएंगे जी, ये अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाए। बिल्कुल आशा कुमारी जी, क्योंकि अगर विल पावर की बात की जाए तो एक बार कोरोना को वो मात दे चुके थे, वापस आए, स्वस्थ हुए, तो शायद किसी ने अंदाजा तो वाकई में नहीं लगाया था कि एक बार इतनी बड़ी महामारी को मात देने वाला इतना दिग्गज, इतना मजबूत जो नेता है वो ऐसे अचानक सबका साथ छोड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है भावुक पल आपके लिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। शुक्रिया आशा कुमारी जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ तमाम जेकर सियासी पार्टियां की गल की जाए, बीजेपी की गल की जाए या हिमाचल के हर एक लोगों की गल की जाए तो अज हर कोई दुखी है क्योंकि जदों कोई 6 बार मुख्यमंत्री रहिंदा है तो किस तरीके की उसकी दिख होगी, किन्ना जो लोग उसनूं चाहुंदे होणगे, किन्ना लोगों के विच आधार उस सियासतदान का होगा, ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि सियासत दे विच जेकर रिपीट हो जाए दूसरी बारी तो उसनूं बड़ी वड्डी गल कहा जाता है, पर 6 बार मुख्यमंत्री रहना अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी गल हुंदी है कि वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे ने हिमाचल दे, वीरभद्र 9 बार विधायक रहे ने, 5 बार सांसद रहे ने, यानी कि सियासत दे विच एक लंबा तजुर्बा उन्हां दा। 87 साल की उम्र दे विच उन्हां ने ਜਿਹੜੇ आखिरी साल लए ने पर उस तो पहला लगातार सियासत दे विच सरगर्म रहे ने। हालांकि पिछले कुछ महीनों तो जो लगातार बिगड़ती हुई सेहत ने उन्होंने इजाजत नहीं दी कि वो सियासी सरगर्मियां दे विच शामिल हो सकन, पर उन्हां दे परिवार वालियां दी गल कीती जावे, उन्हां दे बेटे दी गल कीती जावे तो वो भी सियासत दे विच काफ़ी एक्टिव ने, विक्रमादित्य सिंह। पर फिलहाल अज जो हिमाचल दे लई बेहद एक दुखद घटना है, हर कोई जो है वो दुख का प्रगटावा कर रहा है। कांग्रेस तो लैके बीजेपी के जो दिग्गज नेता ने उन्हां दे वल्लों अज अपने दुख का प्रगटावा किया जा रहा है क्योंकि एक वड्डा चेहरा, एक वड्डा नाम हिमाचल की सियासत दे विच खास तौर पर कांग्रेस के लिए एक वड्डा झटका कह सकते हैं कि जो वीरभद्र सिंह ने वो इस फानी संसार नूं अलविदा कह गए ने। लगातार तबीयत उन्हां दी विगड़ रही सी पर IGMC दे विच उन्हां दा इलाज चल रहा सी, वेंटीलेटर ते सी। वेंटीलेटर ते जदों वो गए तो हालांकि उस वेले अंदाज़ा तो सी कि उन्हां दी सेहत जो है वो ज़्यादा खराब है तो शायद जो है समा ज़्यादा लग जाए या फिर इस तरह की खबर आ जाए, पर अचानक इन्नी जल्दी ये खबर आएगी वो शायद अजे ना परिवार वालियां ने सोचा सी ना हिमाचल के लोगों ने सोचा सी। बचित्र साडे सहयोगी जुड़े ने, सीधा रुख करते हैं। तो बचित्र, आज हिमाचल के लिए, कांग्रेस के लिए या हम कह सकते हैं कि तमाम सियासी गलियारों के लिए ये एक दुखद घटना है कि 6 बार
मुख्यमंत्री रहे, लोगों के लोकप्रिय 9 बार विधायक रहे, सियासत में एक लंबी पारी खेलने वाले वीरभद्र सिंह आज अलविदा कह गए हैं। अमृत, देखिए, बिल्कुल ये आज के दिन जैसा मंदभागा दिन नहीं हो सकता है हिमाचल प्रदेश की लिहाज से, इसलिए क्योंकि जो वीरभद्र सिंह का जाना अपने आप में, जैसा कि आपने पूरी तरह से भूमिका बांधी है, जैसा कहा है आपने कि किस तरह से उनका एक सियासी कद रहा है हिमाचल प्रदेश में, बावजूद जिसके अगर दूसरे नजरिए से भी देखा जाए तो वीरभद्र सिंह, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो कि हिमाचल के निर्माता माने जाते हैं, उनके बाद अगर कोई नेता हिमाचल प्रदेश की आत्मा में वास कर पाया है, हिमाचल प्रदेश की जनता में सचमुच में राज कर पाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वीरभद्र सिंह ही थे। वो ऐसा कोई इलाका नहीं होगा, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी जिसका कोई दुर्गम इलाका नहीं होगा, जिसका कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जिसका कोई नाम हो और वो वहां ना पहुंचे हो, ऐसा कोई जोत नहीं होगा जहां वो ना पहुंचे हों। उनका एक अपना ही अलग रुतबा था, अपना ही एक अलग औरा था। इनफैक्ट धुर विरोधियों में भी उनका एक अपना ही वजूद था, एक वजूद था। धुर विरोधी जो है उनसे दांव सीखते थे सियासत के। बहुत से ऐसे भी उनके धुर विरोधी रहे हैं जो कि उनसे एक तरह से उनको अपना गुरु मानते थे, इसलिए क्योंकि उनके पास जो चालें थी वो शायद आज भी किसी नेता के पास उस तरह की सियासी चालें ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो अमृत मैं आपको ये बताऊं कि आजादी से पहले जब रामपुर रियासत हुआ करती थी तो कहते हैं कि अंतिम राजा जो है वो वीरभद्र सिंह ही थे, उनका राज तिलक बाकायदा हुआ था। और उसके तुरंत बाद जो है वो वीरभद्र सिंह की ओर से जो है फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है फिर विलय कर लिया गया था और हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रदेश के तौर पर अस्तित्व में आया था। उन्होंने रामलाल ठाकुर जो उस वक्त के उनके जो राइवल थे उनको जो है वो हटाकर मुख्यमंत्री बने थे, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार। तो ऐसे जो उनके दिग्गज नेता रहे हैं उनके बीच में उन्होंने सियासत की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी जून में ही हाल ही में जो है उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया था और उन लोगों के बीच में जिस तरह से शांता कुमार का जन्मदिन भी अभी आता है, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन भी, वो समकक्ष थे। उनकी तमाम ये जो बड़ी हस्तियां हैं इनकी जो आयु थी वो एक बराबर थी और हाँ कोई नहीं सोच सकता था कि अभी इतनी जल्दी जो है वो वीरभद्र सिंह इस दुनिया से जो रुखसत कर जाएंगे। और आज पूरा समूचा प्रदेश, पूरा सूबा जो है वो गमगीन